Hey guys, hi. I hope all of you can see me and hear me clearly. If you can, could you please let me know by typing a 5 in the chat box because I need to know that I'm live and it's audible and all of that. Okay, yeah, I can see myself. I'm live. Hi Vinay and Pushpak. Just give me one good moment. I just need to place the chat screen. Oh, sorry. Yeah, great. Okay, ठीक है. ओके, आई बिलीव दैट टुडे आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन वन शॉट. तो गाइज ऑल ऑफ यू हैव यू जॉइंड. अगर किसी को अपने फ्रेंड्स को बुलाना सर गूगल. अरे बेटा रुक जाओ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको. गाइज फटाफट अपने दोस्तों को बुला लो बिकॉज आज लिटरली हमारे पास बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ना है. सो क्विकली कॉल ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स and then we can begin the class, right? फटाफट बेटा. Just give me one quick moment. Yeah, done. Okay. चलो स्टार्ट करें. Okay, guys, first of all, the preliminary stuff. So, guys, welcome to Unacademy. Let's Crack Foundation NTSE channel. I hope you people are doing amazing. Today, we'll be covering photosynthesis, elementary canal. We'll be talking about cellular respiration. We'll be also talking about the human respiratory system. ठीक है. तो basically इतना फंडा हमें clear करना है. ठीक है. Remember, we have a ton of features on our Unacademy app. All you need to do is download the app and make sure that you use the code SONA05 जिससे आपको सभी चीजों का एक्सेस मिल जाता है. टाइमिंग्स अपडेट हो चुकी हैं बेटा. I think a lot of you requested for IOQJS course. IOQJS course starts from 19th. NTSE has already started. Wednesday and Saturday is NTSE. Tuesday, Thursday, Friday is IOQJS. Special classes happen on Tuesday, Wednesday, and Saturdays, and plus classes as you can already see about them, right? So this is the rough idea. ठीक है? Okay. Also, ट्रैकर्स में सब कुछ अपडेट होते जा रहा है, राइट? सो ये जो इसके 2 लेक्चर्स एनटीएससी स्टेज 2 के हो चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन देयर. लाइक कैन अटेंड और कंप्लीट द बैकलॉग. बेटा यू कैन अटेंड, दीज आर रिविजंस, राइट? ये रिवीजन है ना बेटा, तो अगर आपने पहला नहीं भी देखा इट्स फाइन, राइट? ओके, सो गाइस ट्रैकर्स को प्लीज कीप ऑन tabs because everything is updated there. Okay, now what's plus or iconic, I'll tell you about it but in some time. Filal, let us quickly start nutrition and respiration in one quick moment. Yeah, okay, so we'll be doing in the mind map way. Fatafat, nutrition and respiration. So we know what is the job of nutrition. Nutrition का job क्या है, क्या करेगा? Nutrition job is to bring inside of you energy or matter. एनर्जी और मैटर सराउंडिंग से आपके बॉडी में लाना. क्यों लाना? बिकॉज आपकी बॉडी हैज स्ट्रक्चर्स. ये स्ट्रक्चर्स टूटेंगे. क्यों टूटेंगे? इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. एवरीथिंग वांट्स टू डिसइंटीग्रेट. एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है. ठीक है, तो हर चीज टूटना चाहती है. आपको उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी और मैटर चाहिए. तो एनर्जी और मैटर कहां से आएगा? और मैटर में वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट कार्बन. वैसे तो और भी बहुत कुछ चाहिए बट हम कार्बन को खास ध्यान देते हैं बिकॉज आपकी बॉडी के मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स आर लाइक मेड अप ऑफ कार्बन. ठीक है, सो वी टॉक अबाउट where does the energy come from and where does the carbon come from. So energy can come from two sources. It can come from light. So आप बोलोगे phototrophic organisms. Energy can come from chemicals, trophic organisms, right? Phototrophs, chemotrophs. पौधा, plants, राइट? प्लांट्स आर फोटोट्रोफ्स, वी आर कीमोट्रोफ्स. क्योंकि आपका एनर्जी कैसे आता है? रोटी से आता है. रोटी क्या है? रोटी इज स्टार्च, राइट? सो एनर्जी कम्स फ्रॉम फोटोट्रोफी और कीमोट्रोफी. कार्बन कैन कम फ्रॉम
कार्बन कैन कम फ्रॉम ऑटोट्रोफी यानी कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ कार्बन, और कार्बन कैन कम फ्रॉम heterotrophy, that means organic sources of carbon. आप हो heterotroph, plants में बेटा autotroph, because उनका carbon source is carbon dioxide जो simple inorganic source है. Now let us straight away jump to photosynthesis. Photosynthesis is the way जिससे plant अपने पैलाइसेड पैरेनकाइमा सेल्स में उनके पास कई सारे क्लोरोप्लास्ट हैं. इसी क्लोरोप्लास्ट में वो करता है फोटोसिंथेसिस. गाइस, आई एम नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द चैट. ओनली व्हेन आई विल कंप्लीट अ लाइफ प्रोसेस आई लुक एट द चैट विंडो. यानी फोटोसिंथेसिस चैट, एलिमेंट्री कैनाल चैट, सेलुलर रेस्पिरेशन चैट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चैट. इसके बीच में मैं चैट को बिल्कुल नहीं देख रहा, सो आप सभी को सुनना पड़ेगा, ठीक है. सो अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है. तो फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन द क्लोरोप्लास्ट, राइट. सो द वेरी फर्स्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, एंड उसके बाद होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पे अभी तक क्लोरोफिल का नामो निशान नहीं है. अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपके पास ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को आप कहोगे थाइलाकोइड्स. इन थाइलाकोइड्स दे आर अरेंज्ड इन द स्टैक. इस स्टैक को आप बोलोगे ग्रेनम, ठीक है. अब ऐसे आपके पास कई सारे स्टैक हैं, राइट. तो यू कैन कलेक्टिवली कॉल देम ग्रेना, ठीक है. एंड उनके बीच में जो जगह है यू विल कॉल देम स्ट्रोमा. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंस इनसाइड वन ग्रेना, ठीक है. एक ग्रेना के अंदर हो क्या रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स erase this. लेट्स, ठीक है. तो एक बड़ा सा थाइलाकोइड्स बना लेते हैं. लेट अस मेक अ वेरी बिग थाइलाकोइड जस्ट फॉर आवर ओन पर्पस, ठीक है. बस अपने लिए ही एक बड़ा थाइलाकोइड बनाते. तो थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में होता है you have chlorophyll molecules. Now what is the job of chlorophyll molecules? These chlorophyll molecules work as light harvesting complexes. यानी ये क्लोरोफिल या क्लोरोफिल जैसे मॉलिक्यूल लाइट को कैप्चर करते हैं और सेंटर की तरफ देते हैं, राइट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. और बीच में इनका होता है रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो सारा सनलाइट आया उस सनलाइट की एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल फेंकता है, राइट. सॉरी, हाँ, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंकेगा. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन जो अभी बाहर आया, दिस इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग एनर्जी. ये एनर्जी इसके पास कहां से आई? वेयर डज दिस energy come from? The energy comes from the sunlight. अब this electron is accepted by another molecule called NADPH, sorry, NADP, and then you have hydrogen and then this electron and you form NADPH. इसको कहते हैं फर्स्ट एसिमिलेटरी पावर. एसिमिलेटरी पावर मतलब इसका इस्तेमाल आप आगे करने वाले हो, ठीक है. एट द सेम टाइम आपका जो पानी है, द वाटर स्प्लिट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरोफिल लगातार अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. द नेक्स्ट स्टेप इज वाटर स्प्लिट्स टू प्रोवाइड H+ आयंस एंड ऑक्सीजन. दिस इज द रीजन कि आप फोटोसिंथेसिस को बड़ा चाहते हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से आपको मिलता है ऑक्सीजन, राइट. अब H+ आयन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है. जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है तो भी H+ आयंस अंदर पंप इन हो जाते हैं. तो हम देख रहे हैं that you are creating a proton motive force. That means you are concentrating the proton inside the thylakoid membrane. आप thylakoid membrane के अंदर प्रोटॉन को कंसेंट्रेट कर रहे हो. Ultimately what happens? This proton motive force runs a special kind of enzyme called ATP synthase. ATP synthase क्या करेगा?
एटीपी सिंथेज एडीपी प्लस फॉस्फेट को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है एंड एटीपी इज द सेकेंड एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर बोले तो आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ दिस एटीपी और आपका NADPH अब ये आपका एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। इस एनर्जी को आपने कैसे क्रिएट किया? सो देयर आर टू वर्ड्स दैट जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। पहला वर्ड है फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? बेटा फॉस्फोराइलेशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। क्योंकि लाइट एनर्जी के कारण ही पानी का स्प्लिटिंग भी हुआ है ना, इनडायरेक्टली भी देखा जाए तो द एनर्जी फॉर फॉस्फोराइलेशन केम फ्रॉम सनलाइट, राइट। दैट इज व्हाई इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड आपने NADP को हाइड्रोजन दिया, NADP को हाइड्रोजन दिया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is called reduction, and once again the energy from that came from sunlight, so that is called photoreduction. So photoreduction, photophosphorylation creates assimilatory power. अभी तक के जितने भी स्टेप्स हुए थे all of this is called light reaction. तो हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाते हैं एंड लिखते हैं that all of this was light reaction, मतलब लाइट के बिना इसकी कल्पना करना भी इम्पॉसिबल है। बट एज अ रिजल्ट आपके पास एसिमिलेटरी पावर है। एज अ रिजल्ट ऑफ एसिमिलेटरी पावर यू रन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स कॉल्ड कैल्विन साइकिल आफ्टर द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसको आप C3 नाम से भी बुलाते हो बिकॉज द फर्स्ट डिटेक्टेबल कंपाउंड वाज अ थर्ड कार्बन कंपाउंड। C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल ATP और NADPH को लेता है, ATP और NADPH को लेता है, CO2 को लेता है एंड इट मेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्ब्स आपको चाहिए वो बना के दे देता है। दिस इज द होल आइडिया ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द चैट, अगर आपके पास डाउट्स हैं तो पूछिए। NADPH का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं है। कहाँ का इलेक्ट्रॉन दैट वाज प्लग्ड आउट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। NADP क्या है भूल गई? NADP is just an organic molecule. What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. So इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से NADP कहाँ से आया? बेटा NADP ऑलरेडी था, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी था, आपने इन दोनों को चिपका दिया। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है चिपकाने के लिए, ठीक है। तो NADP और हाइड्रोजन के बीच में बैठ गया हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट। Yes, guys. Anything else that you want to ask? Yes, guys. No, all is good. Hi, Shivanshi. Thoda late, beta. We finished one life process, that is nutrition in plants. Okay. Now, as a result of all of this, NA electrons आके कैसे NADPH कैसे हुआ? बेटा NADP एक मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन एक एटम आयन था, उनके बीच में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उनके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। रेस्पिरेशन में समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन का वेट कर लो, ठीक है। चलो, सो एज अ रिजल्ट एट द एंड वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसको आप C3 कहते हो, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि आपको चाहिए होता है CO2, राइट। कैल्विन साइकिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम आप लेते हो रूबिस्को। रूबिस्को जो एंजाइम है वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। वो कार्बन का इस्तेमाल तभी करेगा जब देयर इज प्लेंटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट अगर आपके पास ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेगा। डेजर्ट प्लांट्स दिन के समय अपना स्टोमाटा नहीं खोल सकते, खोला तो सारा पानी उड़ जाएगा। तो व्हाट दे डू इज दे ओपन देयर स्टोमाटा एट द नाइट। रात को अपना स्टोमाटा खोला, ठीक है, रात को अपना स्टोमाटा खोला, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब किया एंड दे कन्वर्ट इट इनटू एन इंटरमीडिएट। दिस इंटरमीडिएट इज मैलिक एसिड या मैलेट, राइट। ये रात के समय की बात है, दिस इज ड्यूरिंग द नाइट। और जब सुबह हो जाता है ये इसी मैलेट को यूज करके CO2 रिलीज करवा देते हैं और ये CO2 से
आप फिर बाकी का सारा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, वो सारा काम आप एज यूजुअल कर लोगे। दिस इज कॉल्ड कैम साइकिल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैम साइकिल, जो डेजर्ट प्लांट्स में जीरोफाइट्स में होता है। अब इसका एक और ऑल्टरनेटिव है जिसको हम कहते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल में क्या होता है, देयर आर बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वो आपके जाइलम और फ्लोएम को सराउंड करके रखते हैं, ठीक है, और इसके चारों तरफ यू हैव दी मेसोफिल सेल्स, सॉरी लेट मी चूज अनदर कलर, उसके आसपास आपके पास मेसोफिल सेल्स हैं। अब देखो मेसोफिल सेल्स एक्सपोज्ड होते हैं बाहर से, तो रूबिस्को के धोखा देने का चांस सिर्फ मेसोफिल सेल्स में होता है। तो सेम लॉजिक हम यूज करते हैं, हम CO2 को लेते हैं दिन में ही और उसको मैलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और मैलेट जो है CO2 को अंदर रिलीज कर देता है इन दी बंडल शीथ सेल्स। क्योंकि बंडल शीथ सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, वहां उनको कभी भी मिलने का चांस ही नहीं है, ठीक है, तो वो आराम से CO2 में अपना रूबिस्को काम चल जाता है एंड दे डू, दिस इज कॉल्ड C4 साइकिल। तो C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल। एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क। सर C3 और C4 का रिएक्शन लिख के दिखा दो, कोई जरूरत नहीं बेटा, नो नॉट नीडेड, कोई जरूरत नहीं है, ओके यहां तक कोई डाउट है बेटा? कोई लॉजिकल पार्ट जो समझ में नहीं आया? C3 C4 कैम, चलो नाउ सारे प्लांट्स ऐसा नहीं करते, आपको लगता है कि प्लांट मतलब फोटोसिंथेसिस, बट नो, कई सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो पैरासाइट्स हैं, जैसे कि कस्क्यूटा, राइट, कस्क्यूटा भी नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें ऐसा काम होता है। बेटा C3 इज द नॉर्मल वे, आप CO2 लो और उसको दे दो, वो काम कर लेगा। C4 में क्या होता है, these plants accumulate carbon dioxide as malate in the mesophyll cell। C3 प्लांट मेसोफिल में ही अपना सारा काम कर रहे थे, बट C4 प्लांट मेसोफिल में एक्यूमुलेशन करके बंडल शीथ सेल्स को देते हैं, और फिर ओके फिर जो बंडल शीथ सेल्स है वो अपना काम करती है, वो जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपका रूबिस्को से काम करवाती है, ठीक है। नाउ अब let us start talking about the digestive system, okay। so digestive system का सर C4 में स्टेम में होता है फोटोसिंथेसिस, नॉट नेसेसरी, लीव्स में भी हो सकता है, nobody is telling कि लीव्स में नहीं हो सकता, ठीक है, लीव्स में भी हो सकता है बेटा। there's something wrong, I don't know what it is, okay sorry guys, चलो ठीक है, it will start working in a moment। अब लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मेल, सॉरी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में यू हैव द माउथ, आपके पास होता है माउथ, व्हाट डज माउथ में, यू हैव टीथ, टीथ बाइटिंग एंड चूइंग द फूड का काम है। देन यू हैव टंग, टंग का काम होता है मिक्सिंग का, राइट, बट माउथ में देयर इज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग कॉल्ड सलाइवा। अब बेटा कुछ कुछ चीजें जिससे रेपिटेटिवली क्वेश्चंस आते हैं, सलाइवा हैज टाइलीन और टाइलीन हैज सेलिवरी एमाइलेज, एमाइलेज यानी कि स्टार्च डाइजेशन यहीं पे शुरू हो जाता है। उसके बाद देयर इज थ्रोट, और बोले तो फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पाथ ऑफ हवा एंड खाना। उसके बाद यहां से दो रास्ते हो जाते हैं, आगे वाला रास्ता इज द विंड पाइप, जिसको आप ट्रेकिया बोलते हो, जो मैं आगे और बताऊंगा, पीछे वाला रास्ता इज द फूड पाइप, ठीक है। अब ताकि खाना खाते समय खाना गलती से आपके विंड पाइप में ना चला जाए, यहाँ पे एक एपीग्लॉटिस होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो उसको बंद कर देता है। द फूड ट्रेवल्स डाउन, खाना नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, खाना नीचे की तरफ ट्रेवल करता है इन द फूड पाइप और दी एसोफेगस, इसको आप एसोफेगस भी कहते हो। नीचे की तरफ यू हैव दिस जे शेप्ड ऑर्गन, आपके पास एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, right, and that is stomach, right, this is stomach। now stomach becomes more interesting because it has HCl, it has mucus,
and it has got pepsin. बेटा HCl का काम एक तो आपके बैक्टीरिया वगैरह को मार देगा, दूसरा it will also help in digesting the proteins, तीसरा it will activate pepsinogen to pepsin. बिल्कुल सही, pepsin is secreted in the inactive form called pepsinogen, तो उसको आप पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हो. अब स्टमक के बाद क्या है? स्टमक के बाद यू हैव द डुओडेनम. डुओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. यहीं से आपका पेनक्रियाज अटैच होता है. दिस इज द पेनक्रियाज जो कई सारे डिजेस्टिव एंजाइम देगा, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज वगैरह वगैरह वगैरह. अब इसके ठीक पीछे यू हैव द लिवर, राइट? ये रहा आपका लिवर. लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, राइट? व्हाट इज द जॉब ऑफ लिवर? लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल. बाइल में क्या है? बाइल में देयर आर सॉल्ट्स. सॉल्ट्स का क्या काम होता है बेटा? सॉल्ट्स का काम होता है इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है? बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ना. बाइल इज स्टोर्ड बाय अनदर ग्लैंड कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. ठीक है, देयर इज अनदर ग्लैंड कॉल्ड गॉल ब्लैडर जो बाइल को टेम्परेली स्टोर कर लेता है. ठीक है. कोई नहीं बेटा, आप बिल्कुल भी फोकस नहीं हो. Rather than asking questions, you have to listen because this is not about you. This is about people who are aspiring for NTSE stage 2. And if you really want this to be a revision session, आपको सुनना पड़ेगा. देखो, अगर मैं बोलते रहूंगा तो मुझे आपके डाउट्स नहीं समझ में आएंगे. अगर आप बोलते रहोगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, राइट? दिस इज अ रिविजन सेशन, दिस इज नॉट अ डिटेल्ड सेशन. डिटेल्ड सेशंस आप ट्रैकर से निकाल सकते हो, राइट? Okay, right now focus. Both Vinay and Kohini, both of you focus. So, लिवर से आया गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से आया डुओडेनम के साथ. वहां पे डुओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद यू हैव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको आप कहते हो जेजुनम. एंड देन यू हैव द नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड इलियम. आपको इनके बीच के डिफरेंसेस जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको बस नाम जानना जरूरी है क्योंकि नाम से क्वेश्चंस आ जाता है. व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंबाइंड अराउंड 5 to 6 मीटर्स. बट इसको स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ल्यूमेन बहुत पतला है ना. यहां से स्टार्ट होता है द लार्ज इंटेस्टाइन, राइट? सो यहां से स्टार्ट होता है आपका द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा होता है सीकम. सो व्हाट इज दिस? दिस इज सीकम. सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहां पे खड़ी होती है बेटा. दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स. अपेंडिक्स हमारे पूर्वजों में, हमारा एंसेस्टर्स में, दे यूज्ड टू होस्ट बैक्टीरिया व्हिच कुड डाइजेस्ट सेल्यूलोज. अब इट इज वेस्टिजियल, नथिंग मोर. सो सीकम गोज अराउंड फॉर्म्स कोलॉन. इस पार्ट का नाम क्या है बेटा? इस पार्ट का नाम है कोलॉन. कोलॉन में बचा कुचा अब्जॉर्प्शन हो जाएगा एंड फाइनली यू हैव रेक्टम which is temporary storage of feces and then you have anus. एक और चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको कुछ चीजों का नाम जानना जरूरी है. सो देयर आर फोल्ड्स एंड फोल्ड्स हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. अगर आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को भी जूम आउट करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा. सेल्स, और इन सेल्स के सरफेस पे देयर आर प्रोजेक्शंस. दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड माइक्रोविलाई. इन दोनों का काम सिंपल है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना जिससे आपका अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है. देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. पहला इज इंजेशन, खाना खाना. दूसरा इज डाइजेशन, उसको छोटे छोटे मोनोमर्स में तोड़ना. तीसरा इज एब्जॉर्प्शन. चौथा इज एसिमिलेशन, जो आपके सेल्स में जाके आपने जो भी खाया उसका इस्तेमाल हो जाता है. ग्लूकोज आपको एनर्जी देगा, फैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा, विटामिन बायोकेमिकल स्टेप्स में मदद करेगा. बट लास्ट स्टेप इज इजेशन, जिसमें जो भी चीज जो इनडाइजेस्टिबल थी या अनडाइजेस्टेड रह गई. इनडाइजेस्टिबल मतलब आप उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, यू डोंट हैव द एबिलिटी फॉर द एंजाइम्स. अनडाइजेस्टेबल मतलब आपने ज्यादा खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको आप बाहर फेंक देते हो वाया दी एनस, राइट? सो ऑलमोस्ट
इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए. देन यू कैन ट्राई टू रिमेंबर द एग्जाम नेम्स ऑफ द ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड्स, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है. पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी, ये तीन मेजर ग्लैंड्स हैं. मेजर मतलब बड़े बड़े, बाकी सब छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द गट फ्लोरा और द माइक्रोब्स दैट लिव इन योर इंटेस्टाइन, देयर इज अ लॉट. और ये आपके लिए कई सारे विटामिन्स बनाने का काम तो करते ही हैं. ठीक है, अब इसमें अगर कोई डाउट है बेटा तो पूछो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ, फील फ्री टू आस्क. सो हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कर लिया. अगर यहां तक कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क. What is gut flora? The bacteria that lives in your gut. Gut is intestine. आपके इंटेस्टाइन में रहे रहे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं सिंपल भाषा में गट फ्लोरा. वो आपके लिए कई सारे विटामिन बनाने का काम करते हैं. इसलिए जब आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है तो आपको डॉक्टर्स विटामिन भी देते हैं, क्योंकि वो विटामिन अभी तक तो बैक्टीरिया बना रहे थे, बट आपकी दवाई खाने की वजह से वो मर जाएंगे. सो प्लीज आई विल वॉच डिटेल्ड सेशन. बेटा डिटेल्ड सेशन बहुत पहले हुआ था और आप ट्रैकर से उसको डेफिनेटली देख सकते हो. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. बेटा ये तो ब्रश पार्ट सेशन है ना, ये एक्चुअली दिस इज फॉर पीपल हु आर डूइंग एनटीएससी स्टेज 2. तो वो अभी 11 12th में, ठीक है. तो इसीलिए वी आर जस्ट डूइंग अ ब्रश अप. ट्रैकर कहाँ है? एक सेकंड रुक जाओ. ट्रैकर ये रहा ट्रैकर. ओके, ये रहा ट्रैकर बेटा. देयर इज नो गट फाउना. गट फाउना नहीं होता. ठीक है. bit.ly 3gs bnj, यू कैन टाइप द सेम. ठीक है. सर हिंदी में बैच नहीं है बेटा. हिंदी इंग्लिश सब में तो मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ ना, है ना. बट पूरा हिंदी में अगर होगा तो बेटा आंसर्स तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है ना, तो थोड़ा सा तो आपको भी आगे आना होगा. गाइज बिफोर आई गो हेड, आई विल क्विकली टॉक अबाउट अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस बेटा एक सब्सक्रिप्शन है जिसको लेने के बाद यू गेट एक्सेस टू ऑल द बैचेस in a particular category where it's taken by top educators. Doubt clearing sessions हर चौथी क्लास में होता है, right? And live mock test, mentorship, guidance, all of that, right? और कई सारे बैचेस हैं बेटा. जैसे एक बैच मास्टर बैच है, राइट. ये बहुत पुराना है, 31st को खत्म हो जाएगा. बट सारथी बैच जो है ना सबसे नया है. ये क्लास 10th के टॉपिक्स को टर्म 1 लेवल से एनटीएससी लेवल तक जाएगा, है ना. और तूफान बैच आपके 9th टॉपिक को टर्म 1 से एनटीएससी लेवल तक लेके जाएगा. अब कैसे लेना है? पहले कैटेगरी चूज करना, फिर महीना चूज करना, फिर कोड डालो. कोड क्या है बेटा? सोना 05. अब कोड क्यों डालने बोल रहा हूँ, कोड डाल के क्या फायदा होता है बेटा? कोड डालने से एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाता है आपको. सो वंस यू पुट डाउन द कोड, आपका पर महीना मंथ प्राइस आ जाता है 722 पर मंथ. सर हिंदी मीडियम से हूँ बेटा. देखो अजय बुरा मत मानना बेटा, बट देखो आई टोटली रिस्पेक्ट द लैंग्वेजेस, बट एक बात है बेटा, हायर एजुकेशन विल बी इन इंग्लिश. और दिस इज द टाइम जब आपको सारा लैंग्वेज का लिटरेसी कल्टीवेट करने का जरूरत है. सारा मतलब एक तो अपना जो भी वर्नैकुलर लैंग्वेज है, विच इज हिंदी, तमिल, बंगाली, विच एवर इज दैट. एंड उसके बाद एक इंग्लिश तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि देखो चलो ठीक है 12th तक हो गया, बट 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, वो तो बुक्स इंग्लिश में होगा ना बेटा. और उस समय ना आपके लिए चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होगी. अभी आसान है लैंग्वेज सीखना. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप हिंदी मीडियम से किसी भी और मीडियम से हो, प्लीज लर्न इंग्लिश. आप इंग्लिश जरूर सीखिए. अभी मान लीजिए आप हिंदी में लिख के आगे बढ़ भी जाएंगे, बाद में आपको जरूरत पड़ेगी बेटा. ठीक है. ओके. सो गाइज प्लस के बाद यू ऑल्सो हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें प्लस के सारे फीचर्स होते हैं. बट बिसाइड्स दैट यू गेट अ पर्सनल मेंटोर, राइट. और इस पर्सनल मेंटोर बी एबल टू हेल्प यू, राइट. क्लास हो गई नहीं बेटा, अभी रेस्पिरेशन पढ़ना बाकी है. Then you have live doubt solving, weekly reports, parent connect sessions and a lot of study planning activities as well. लेने का तरीका वही सेम है. You first go for the category, then go for the महीना, then go for the this. ठीक है. And at the end you have the 10% off. Right? Sir, celebrity amylase और amylase secreted by pancreas अलग अलग एंजाइम होता है ना. थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा बेटा, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा. बट यू हैव अमाइलेजेस सिक्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑलमोस्ट सेम ही होता है. Right, it's almost the same thing. There might be some differences in the structure. It's almost the same thing बेटा. ठीक है. ओके.
सो गाइज अब हम जा रहे हैं रेस्पिरेशन पे। ना दिस इज वेयर थिंग्स गेट अ लिटिल बिट नेस्टी, बट अगर आप ध्यान दोगे ना, बिलीव मी, बहुत आसान है समझना। अब देखो अभी तक आपने क्या किया, आपने कार्बोहाइड्रेट, राइट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज बना लिया। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ के आप एनर्जी निकाल सकते हो। प्रोटीन्स को तोड़ के डाइजेशन में आपने अमाइनो एसिड्स बना लिया। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड से आप अपने बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड प्रोटीन्स बना सकते हो। बहुत अच्छी बात। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है, दैट इज रेस्पिरेशन, इट इज गोइंग टू फोकस ऑन जस्ट वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट वन थिंग? दैट वन थिंग इज, भैया, गेटिंग एनर्जी। तो सबसे पहला काम, गेटिंग एनर्जी, इज व्हाट? लेट अस टॉक अबाउट इट। सो यू हैव ग्लूकोज। ग्लूकोज को आप तोड़ोगे, तोड़ के क्या बनाओगे? पायरुवेट, राइट? तोड़ के क्या बनाओगे? पायरुवेट। ग्लूकोज हैज 6 कार्बन एटम्स, तो एक ग्लूकोज को जब तोड़ोगे तो 2 पायरुवेट बन जाएगा, क्योंकि पायरुवेट हैज 3 कार्बन एटम्स, राइट? फिर आप पायरुवेट को भी तोड़ोगे, किस में तोड़ोगे? यू विल फॉर्म एन एसिटाइल कोएंजाइम ए विच हैज ओनली 2 कार्बन, बट क्योंकि 2 पायरुवेट थे तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम होगा, और यहां से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। ओके, अब आप बोलोगे सर एसिटाइल कोएंजाइम में क्या है? बेटा इट्स जस्ट अ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे ज्यादा अभी मत सोचो। एसिटाइल कोएंजाइम में फिर से टूटता है, किस में टूटता है? इट विल ब्रेक डाउन इनटू CO2, राइट? एंड once again you'll have 2 CO2s, राइट? अब देखो एक खास चीज, अच्छा सॉरी 4, हाँ 4 हो गया ना, हाँ 4 CO2 will be released. Now let us try to understand the names of each of these steps. तो पहला का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज द नेम ऑफ द रिएक्शन, और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है बेटा? ग्लाइकोलिसिस हैपेंस इन साइटोप्लाज्म, राइट? साइटोप्लाज्म के पास ही सारे एंजाइम्स हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। अब ग्लाइकोलिसिस से बना पायरुवेट, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनने के प्रोसेस को कहते हो आप लिंक रिएक्शन। अब लिंक रिएक्शन कहाँ होगा? तो बेटा इसके बाद हर एक चीज हो रही है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस इज हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ लिंक रिएक्शन से बना एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर एंड्स अप इन अ प्रोसेस कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, और ये क्रेब्स साइकिल से वो आप CO2 में तोड़ देते हो। अब बात है कि सर बात तो थी एटीपी बनाने की, एटीपी तो अभी तक दिखा ही नहीं। बेटा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ग्लाइकोलिसिस and Krebs cycle does give you a small number of ATP, very small numbers of ATP. But what each of these processes give you, what each of these processes give you is energy carriers, right? ये processes आपको energy carriers देते हैं। क्या है ये एनर्जी कैरियर्स? दे आर मॉलिक्यूल्स। एनर्जी कैरियर्स क्या है बेटा? एनर्जी कैरियर्स आर मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल्स? आपको इनका नाम याद होना चाहिए, NADH एंड FADH2। FADH2 एंड NADH आर एनर्जी कैरियर्स, यानी कि एनर्जी को कैरी करते हैं। कैसे कैरी करते हैं? एज बॉन्ड्स इन बिटवीन देम, ठीक है? नाउ व्हाट विल हैपन? सो दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज गॉट फोल्ड्स, और आप ये 9th ग्रेड में पढ़ के आते हो दैट दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे, राइट? तो आपका NADH एंड FADH2, NADH एंड FADH2, sorry, हाँ, NADH and FADH2, they lose their electrons, right? They lose their electrons and they lose their hydrogen. Now this electron travels in the inner mitochondrial membrane. Transport is called electron transport chain, ठीक है? इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में जंप कर रहा है। अब आप बोलोगे सर जंप करा के क्या मिलेगा? बेटा जंप कराने से हमें क्या मिलता है? हम मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ जो है
हाइड्रोजन आयंस को कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं. बिकॉज ऑफ दीज जम्प्स हाइड्रोजन आयंस आर बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द अदर साइड. अब हम क्यों करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन? हम कॉन्सेंट्रेशन इसलिए करा रहे हैं बिकॉज देयर इज अ प्रोटीन राइट अटैच्ड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं. वी कॉल देम ऑक्सीसोम्स, वी कॉल देम F0 F1 पार्टिकल, वी कॉल देम कॉम्प्लेक्स 5, वी ऑल्सो कॉल देम ATP सिंथेज. तो हम अलग अलग नामों से सेम ही चीज को बुलाते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो H प्लस आयंस मैंने इकट्ठा किए थे वो H प्लस आयंस वर्क लाइक विंड की तरह काम करते हैं. और जब वो इस ATP सिंथेज से होके गुजरते हैं तो ATP सिंथेज नामक पंप को चलाते हैं. पंप को चला के क्या मिलता है? दे कन्वर्ट ADP into ATP. This is the maximum biggest source of ATP throughout the whole process, right? Throughout the whole process. And this is termed as oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. फॉस्फोराइलेशन क्यों बोला? क्योंकि आपने एक फॉस्फेट ऐड किया. ऑक्सीडेटिव क्यों बोला? बिकॉज एनर्जी फॉर दैट केम फ्रॉम ऑक्सीडेशन. अब आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, राइट? तो NADH और FADH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन गवाया और उसको गवा के ऑक्सीडेशन एनर्जी क्रिएट किया. एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्रिएट्स द ATP दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. अब अगर पूरे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में अगर किसी को डाउट है तो इतना पूछ लो, अदरवाइज मैं फिर और आगे बढ़ूंगा. हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चंस यू कैन फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड अहेड. I don't see a lot of people attending classes today. क्या हो गया? I think last class में there were like 20-30 people, but आज is hardly 7 people. आज ऐसा क्या है भाई? मतलब स्पेशल डे, नॉट सो स्पेशल डे. ओके, तो इस खामोशी का मतलब मैं क्या ये समझूं कि किसी को कोई डाउट्स नहीं है? व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी? यस, ये एक क्वेश्चन रह गया. ठीक है, सो गाइज हमने इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराया, राइट? हमने इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराया. बेचारा इलेक्ट्रॉन अपना सारा एनर्जी ऑलमोस्ट खो चुका था. जब ये अपना सारा एनर्जी खो चुका था, दिस इलेक्ट्रॉन is accepted by oxygen and H plus ions, and as a result you create water. इस पानी को आप कहते हो मेटाबॉलिक वाटर. ठीक है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म ने पानी को बनाया है. सर NADH और FADH इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली H प्लस बनता है ना? हाँ, देखो H प्लस उनके साथ जुड़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो H प्लस खाली. अब H प्लस को जो है आप उधर भेजोगे. सर डाइवर्सिटी का वन शॉट आएगा बेटा, डाइवर्सिटी का आएगा, डोंट वरी. ठीक है, अभी इधर फोकस कर लेते हैं बेटा. ठीक है, ओके. ये वाला फिर से समझा दो पूरा बेटा. अगर ये मैंने रिपीट किया तो आगे के टॉपिक्स रह जाएंगे, राइट? इसीलिए आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा. अगर डाउट है तो कमेंट्स में लिखो या मेरे टेलीग्राम पे पूछ लेना, सोना सिंह अनअकैडमी. ठीक है, अब मैं पाइरुवेट के आगे लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल तभी जाऊंगा जब मेरे पास ऑक्सीजन होगा. अगर ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. एरोबिक का मतलब 2 वहां 36 यहां इज इक्वल टू 38 ATP. अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो 2 ऑक्सीजन वहां, 2 ATP उधर से मिला ग्लाइकोलिसिस से, 36 ATP आगे से, टोटल 38 ATP आपको मिल जाते हैं अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ. बट कई बार ऐसा नहीं होता, कई लोगों के पास इट्स सिंपली नॉट देयर. तो उस केसेस में हम क्या करते हैं? सो पाइरुवेट हैज गॉट 2 पॉसिबिलिटीज. पाइरुवेट के पास 2 पॉसिबिलिटीज है. ग्लाइकोलिसिस में 2 निकले बेटा, ग्लाइकोलिसिस में 2 निकले. सो पाइरुवेट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 ऑल्टरनेटिव्स. लैक्टिक एसिड में टूट सकता है
or you can further break it down to ethanol and carbon dioxide. इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करना ईस्ट में होता है, लैक्टिक एसिड में ब्रेक करना could happen in the muscle cells under duress, जब कम ऑक्सीजन आपके मसल्स को मिल रहा है, और इट कुड ऑल्सो हैपन इन दी LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, राइट। डोज जो आपका मतलब केक्स ब्रेड वगैरह का आटा है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही उसका फ्लफीनेस आता है। ओके, इतना क्लियर है सर? O2 अगर नहीं होता तो ईस्ट तो वो CO2 कैसे रिलीज करेगा? क्यों? O2 का सिर्फ मेटाबॉलिक वाटर से रिलेशन है बेटा, CO2 तो हम तोड़ के रिलीज कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि पायरुवेट में ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीजन नहीं, सबके पास ऑक्सीजन है ना। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होता है वो आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके okay, चल, so now we have completed cellular respiration and that brings me to the last topic जो आज की क्लास का है, और वो लास्ट टॉपिक जो आज की का फॉर्मूला क्या है बेटा? पूछते नहीं है। C2H5OH is ethanol and C3H6O3 I think is lactic acid. They are not going to ask you this, I guess. ठीक है, इथेनॉल का वैसे आपको पता होना चाहिए C2H5OH and lactic acid is C3H6O3, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। Now let us talk about the respiratory system in humans. तो फिर से हम वही बताएंगे, there is a mouth and there is the nasal cavity. Nasal cavity से हम सांस लेते हैं, हम nasal cavity से सांस लेने के बाद you have hairs in your nose. Hairs जो होते हैं फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद there is mucus. Mucus is a slimy coating, है ना। ये कोटिंग में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और सेल्स होते हैं जो आपके बैक्टीरिया या पैथोजन को खलास कर देंगे, है ना। उसके बाद what do you have is here once again the pharynx, और फिर जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ। आगे वाला जो होता है विंड पाइप, या आप उसको ट्रेकिया कहते हो। विंड पाइप के जस्ट यहाँ पे आपने देखा था एपिग्लॉटिस, एंड उसके जस्ट नीचे यू हैव लेरिंग्स और द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स बोले तो उसमें वोकल कॉर्ड्स हैं जो वाइब्रेट करते हैं, और इसी के वाइब्रेशन से आप अलग अलग तरीके की आवाजें निकालते हो। Now let us look at कि इस windpipe का क्या होगा, what happens to the windpipe. So this is the windpipe or the trachea. Trachea divides into something called primary bronchi, right? They divide into primary bronchi. Now you have lungs. So this is the right lung and this is the left lung. Now primary bronchi divides into secondary ब्रोंकाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू टर्शरी, टर्शरी इनटू क्वाटरनरी, एंड इस तरह से डिवाइड होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। बट एट द एंड क्या है? यू हैव अ बैग ऑफ सैक्स, दिस इज कॉल्ड एन एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक में कई सारे एल्वियोलाई हैं, तो ये वन घेरा इज एल्वियोलाई, सिंस मेनी ऑफ देम आर टुगेदर दैट इज एन एल्वियोलर सैक। अब यहाँ पे देयर इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की एक लेयर, और ये लेयर से एक्सचेंज होता है क्योंकि यहाँ पे कई सारे ब्लड कैपिलरीज आर सराउंडिंग देम। व्हाट इज नोस्ट्रिल? द होल्स आर नोस्ट्रिल्स बेटा, ठीक है। लेरिंग्स पूरा कार्टिलेज से बनता है, sort of, it's not just cartilage but yeah sort of the vibration, yeah, ठीक है। अब the movements of the respiratory system are sort of important, पूछ लेते हैं। तो आपका lungs they rest on this rack like structure जिसको आप कहते हो diaphragm, right? तो हाउ डू यू ब्रीथ? आपका इनहेलेशन ब्रीदिंग इन, एक्सहेलेशन ब्रीदिंग आउट कैसे होता है? तो डायफ्राम is pulled down, ribs are pulled up,
रिब्स आर पुल्ड अप, डायफ्राम इज पुल्ड डाउन। इससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रहा है, विड्थ इंक्रीज कर रहा है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट मीन्स यू आर ब्रीदिंग इन, ठीक है। एंड इसका ठीक उल्टा होगा, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, राइट, सॉरी, डायफ्राम अभी जो है कहां था, अभी नीचे था, कंट्रैक्ट किया हुआ था, अब ये रिलैक्स करके ऊपर जाएगा, राइट। सो लेट मी चूज अनदर कलर। सो डायफ्राम गोज अप, rib goes down, volume decreases, pressure increases, and then you breathe out, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। वो अक्सर इंटरनल एक्सटर्नल कॉर्ड मसल्स के रोल भी बता दो प्लीज बेटा, वो रिब्स को पुल करने में आपका मदद करते हैं। आई थिंक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स आर द मेन प्लेयर्स, ठीक है। सो इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स को ऊपर पुल करते हैं, डायफ्राम उसको नीचे खुद को नीचे ऊपर करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। एक चीज मैं बोलना भूल गया, आपका विंड पाइप में देयर इज सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, और ये सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम म्यूकस में ट्रैप चीजों को बाहर धीरे धीरे फेंकता है, ठीक है। यस गाइस, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गो अहेड। सर एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही कॉन्सेप्ट होता है ना? हाँ हाँ, यही कॉन्सेप्ट है बेटा। लंग्स में मसल नहीं होता ना, क्यों नहीं होगा, व्हाई नॉट? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए यू नीड मस्कुलर टिश्यू बेटा। व्हाट इज ट्रेकिया? विंड पाइप को ट्रेकिया कहते हैं बेटा, विंड पाइप को ट्रेकिया कहते हैं। ओके, लास्ट एंड छोटू सा कॉन्सेप्ट इज द ऑपरेशन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा कैसे ऑपरेट करता है ये भी पूछ लेते हैं बेटा। सो स्टोमाटा, दे आर समवट लाइक दिस, किडनी शेप्ड इन डाइकॉट्स, एंड समवट दे आर लाइक दिस, डम्बल शेप्ड इन मोनोकॉट्स, ठीक है। तो मोनोकॉट्स में ऐसा होता है, डाइकॉट्स में ऐसा होता है। नाउ दीज आर थिकर, ये जो सेल वॉल होता है ना इसका, स्टोमाटा के गार्ड सेल्स का, वो जो है अंदर की तरफ थिक होता है, बाहर की तरफ थिन होता है। तो हमारा मानना है कि ऑन प्रॉपर स्टिमुलेशन, जैसे सूरज की रोशनी आने से पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, जैसे पोटेशियम आयन अंदर आता है, द नेक्स्ट द स्टेप इज कमिंग इन ऑफ वाटर। जैसे पानी आएगा वैसे दी सेल वॉल्स वुड स्वेल। अब स्वेलिंग जो है बाहर की तरफ ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि अंदर का सेल वॉल इज थिक एंड बाहर का थिन, एंड दैट मींस एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर, endosmosis of water causes the opening of stomata. Sir, why are there valves to prevent air from entering through anterior sacs in birds? एक सेकेंड, why are there valves to prevent air from entering through anterior sacs in birds? I honestly don't know. I'll have to read. मुझे पढ़ना पड़ेगा. Must be something to do with pressure maintenance. Somewhere, honestly don't know. मुझे पढ़ना पड़ेगा. Right. Which tissue is present in a heart? Cardiac muscles and a lot of different tissues. Nervous tissue भी होगा, आपका epithelial tissue भी होगा, सारे tissues होते हैं बेटा. Why sometimes we get cramps? Too much of lactic acid accumulation. ठीक है? I'm good बेटा. Thank you so much. Guys, any doubts? Any doubts? अभी तक के पूरे समाचार में any doubts? So we started with leaves, है ना? हमने फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट किया, फिर हमने न्यूट्रिशन किया, फिर हमने सेल्युलर रेस्पिरेशन किया, फिर हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन किया. Now guys, I want your feedback on something really honest, and the feedback is, do you prefer these type of sessions or do you prefer questions only? क्या आपको questions only चाहिए या do you prefer explanation as well?
क्योंकि मुझे जैसा आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ यू दिस लेक्चर इज फॉर एनटीएससी स्टेज 2, यानी आप लोग अभी अपने 11th और 12th में, और हो सकता है आपने इंजीनियरिंग ले रखा होगा तो आपका बायो बिल्कुल आउट ऑफ टच है। आई अंडरस्टैंड दैट, इसीलिए आई ऑल्सो एक्सप्लेन स्टफ ब्रीफ में ही सही, बट आई डू एक्सप्लेन। बट इज दैट कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। कभी कहीं सुना था कि लंग्स में मसल नहीं होता बट डायफ्राम में होता है इंटरनल। बेटा बिना मसल्स के आपका ब्लड वेसल्स कैसे काम करेगा, ये सोचो, ब्लड वेसल्स में होगा, है ना। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके ट्रेकिया को बंद कर देता है ताकि गलती से सॉलो करते वक्त खाना उधर ना चला जाए। थैंक यू बेटा। चलो समीर एंड कोहिनी सेज एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज ऑस्मोसिस? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के हाई कंसेंट्रेशन से सॉल्वेंट का लो कंसेंट्रेशन, दिस इज ऑस्मोसिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके गाइस, ओके। आर वी रेडी फॉर अ फ्यू क्वेश्चंस? आर वी रेडी फॉर अ फ्यू क्वेश्चंस बेटा? व्हाट इज मियोसिस? बेटा मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एक तरह का सेल डिवीजन है बेटा। आर यू फ्रॉम महाराष्ट्र? नो बेटा, आई एम फ्रॉम बिहार। I am from Bihar and I live in Delhi, but I am from Bihar. ठीक है, osmosis is a kind of transport of water or solvent from solvent का high concentration to solvent का low concentration. Which book is best for NTC stage 2? CBSE का NCERT, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये 4 बुक्स पढ़ लो, डन है आपको कोई। और ये सारे बुक्स फ्री में मिलते हैं बेटा, यू डोंट नीड टू बाय एनी ऑफ दोज बुक्स, ये सारे बुक्स आपको फ्री में मिलते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी वन क्विक मोमेंट सो दैट आई कैन स्टार्ट क्वेश्चंस। एक सेकेंड मुझे देना गाइस। क्वेश्चंस फिलहाल आपको चैट में आज आंसर करने हैं, राइट? यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। आप जितना प्रॉम्प्टली रिप्लाई करोगे उतना फायदा होगा, राइट? सो आपके पास 5 सेकेंड होगा हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, एक सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9 बेटा, एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9। ओके, सो गाइज अ flask containing photosynthetic green alga and a control flask containing no algae are both placed under light source। ठीक है, तो 2 फ्लास्क है, एक में एल्गी है, एक में एल्गी नहीं है, दोनों को लाइट सोर्स के अंदर रखा। ठीक है, एक दोनों में स्विच ऑन स्विच ऑफ किया, पहले 12 घंटे के लिए ऑन फिर 12 घंटे के लिए ऑफ। डिसॉल्व कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑक्सीजन का मेजर किया गया। ठीक है, रिलेटिव डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल, रिलेटिव डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल, रिलेटिव, राइट, कैसा होगा? रिलेटिव डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल कैसा होगा? ठीक है, थोड़ा सा एक्यूरेटली चूज करो। यूल आंसर इन द चैट बॉक्स बेटा। बेटा आप जितना दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा सीख पाओगे। विच बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द बॉडी? बेटा millions of types of bacteria, you have more variety of bacterial cells than your own cells of your body, so millions। okay, now beta you have to read the question very carefully। relative dissolved oxygen, अब सुबह के समय, राइट, सुबह के समय फोटोसिंथेसिस होगा तो सुबह के समय एल्गी वाले फ्लास्क में द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इंक्रीज्ड, राइट। बट रात के समय सिर्फ रेस्पिरेशन होगा और रेस्पिरेशन होने की वजह से डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। बट जिसमें एल्गी नहीं है वो उतना घटेगा भी नहीं, तो करेक्ट आंसर इस केस में आपका डी था। ठीक है, a scientist is growing corn in a greenhouse, he's trying to achieve mass production, right? वो ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक शीट्स यूज करना चाहते थे ताकि अंदर ज्यादा गर्मी ना हो, शीट्स टू शेड द ग्रीन हाउस, है ना। वो कौन से कलर का ट्रांसलूसेंट शीट इस्तेमाल करें, कौन से कलर का ट्रांसलूसेंट शीट इस्तेमाल करें जिससे उनका ज्यादा अंदर गर्म ना हो? विनय सेज बी, समीर सेज डी। ब्लू, वाई ब्लू बेटा, क्यों?
वाई ब्लू? क्यों? क्यों? वाई? वाई नेशन वांट्स टू नो, है ना? ब्लू क्यों? बेटा देखो, आपको पता है वी और प्लांट्स यूज द रेड एंड द ब्लू लाइट, राइट? रेड और ब्लू लाइट जो है प्लांट यूज करता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर ट्रांसलूसेंट स्क्रीन आपकी ग्रीन इन कलर होगी, वैसे भी वो आप फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं करते, तो यू वुड बी यूजिंग ग्रीन। देखो आपका लाइट एनर्जी, राइट, मेंटेनिंग प्लांट ग्रोथ को भी मेंटेन करना है आपको, राइट? ब्लू की एनर्जी ज्यादा जरूर है, बट आप प्लांट ग्रोथ को थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज करोगे, राइट? यू विल नॉट फॉर गो द प्लांट ग्रोथ, ठीक है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स डैश 1 2 3 4, बिहार 2017 का पेपर है, कमान। Guys, 7 to 10, there won't be any classes. Unacademy staff is going on leave for 7 to 10, but special classes will continue as planned. Special and plus and iconic classes जैसे planned है वैसे ही जाएंगे. Plus classes for biology will not happen 7 to 10. ठीक है? Very good. All of the above. बिल्कुल सही. One of the statements is true about photosynthetic pigments in plants. You have to choose which one. Okay, so there is only one type of chlorophyll. No, wrong. There's chlorophyll A, there's chlorophyll B. Chlorophyll absorbs green light, right? That is wrong. This is wrong. Is found in the membrane of thylakoids. That is correct. ठीक है. Graph represents the measurement of pH in the plant leaves during 36 hours. ठीक है. pH in graph, pH in leaves को measure किया गया, तो pH पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा. तो इस हिसाब से आप क्या समझ सकते हो कि what is happening? Acid products. What is happening to acid products? Come on, guys. What is happening to acid products? वेरी गुड. सो दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एट द नाइट. तो हमने अभी अभी कैम साइकिल देखा था कि रात को हम मैलेट या मैलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और सुबह को उसको कन्वर्ट करके हम इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट? गाइज, देयर इज गोइंग टू बी मोर प्रैक्टिस. आप आगे और प्रैक्टिस सेशंस आप देखोगे, राइट? That would be happening a lot on the special classes. Special classes are once again completely free, beta. ठीक है? I'll just produce the list of special classes. By the way, do remember to like this video and share it with your friends. And if you spot anything inappropriate, let us know, and we'll try to take care of it. Right? So guys, remember आप मेरे special classes को follow कर सकते हो by just following my profile. और जैसे कि आप स्पेशल क्लासेस में देखोगे, दीज आर द स्पेशल क्लासेस ऑफ अक्टूबर. आप एडवांस में इनरोल कर सकते हो. हम अभी व्हाई डू वी फॉल इल, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, फिर नेचुरल रिसोर्सेज, फिर हेरिडिटी, फिर सेल एंड डाइवर्सिटी, बहुत सारा प्रैक्टिस आपका ऐप पे होने वाला है. एजर्शन रीजन टर्म 1, केस स्टडी क्वेश्चंस आप देख सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 practice sessions are scheduled there, right? So make sure that you attend those sessions. Pepsin beta, enzyme is pepsin, and you have a tracker for making sure कि आपके पास सारी चीजें. Special classes have more features. They have polls, they have questions, और वहां पे लीडर बोर्ड्स भी आता है. ठीक है? तो मेक श्योर दैट यू चेकआउट. ये तो पुराना वाला है, मैं इसको रिप्लेस करना भूल गया. एंड remember, you get a 10% off from the subscription once you use the code. So download the app if you haven't already done that, and you can always reach us at Sona Singh Unacademy and Unacademy NTSE Foundation, जहां सारे टीचर्स अपडेट्स आपका डालते हैं. Do remember to like, share and subscribe, and also click on the bell icon to make sure that आपके पास सारे आते रहें.
Sir, salivary and thyroid are simple columnar. Yes. नो क्यूबॉइडल होने चाहिए, कॉलमनर नहीं होगा बेटा. आई थिंक क्यूबॉइडल होना चाहिए. लेट मी कंफर्म. डक्ट्स, इनके डक्ट्स की आप बात कर रहे हो राइट? इनके डक्ट्स की बात कर रहे हो राइट? दे शुड बी क्यूबॉइडल, बट लेट मी कंफर्म. हो सकता है कॉलमनर भी हो, एक बार मुझे कंफर्म करना है. आई ऑलवेज टेंड टू फॉरगेट दिस थिंग्स. लेट मी कंफर्म. ठीक है बेटा, सबका आएगा. सेल और टिश्यू का आ गया. आज न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का हो रहा था. ठीक है, ओके. ओके, सो गाइज विल मीट नाउ ऑन 11th आई गेस. ट्यूसडे को अब मिलेंगे. तब तक के लिए शब्बा खैर. सी यू सून. हैव अ ग्रेट नाइट. बाय बाय गाइस. थैंक यू सो मच.